Morning, children. Once again, I am wishing a very good morning to you all. This is a fourth lecture of your business studies. We are going to start our lecture number 4 today. In my previous lecture, we have discussed the features and characteristics of management. Your chapter is still in progress. First chapter, that name of your chapter is nature and significance of management. You know, children, whole department of business, either private, either government, any form of business is totally based on management. Without management, business can't be growth, business can't be earn profit, business can't be survive. That is why in commerce department, in your syllabus, management is very important for you to know what is management, features of management, characteristics of management. Apart from that, we are going to start the topic of the day today is what is the objective of management. What is the objective of management? What is the objective of management? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का मोटिव क्या है, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, वी कम्स टू नो। यही से हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। आपने लास्ट 3 लेक्चर आपने देखा होगा, ये 4th लेक्चर है। अभी तक हमारा कंटिन्यूसली मैनेजमेंट स्टार्ट है, मैनेजमेंट चल रहा है। पूरा आपका हाफ ऑफ द बिजनेस स्टडी की बुक आपको पूरा मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है, मैनेजमेंट पे ही डिपेंड है। और आपको मैनेजमेंट समझना होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है या मोटिव क्या है। यू कम्स टू नो। इस लेक्चर को देखिए, अब आपको समझ में आएगा। बिफोर वी स्टार्ट, वी शुड रिवाइज आवर प्रीवियस टॉपिक। वी नो दैट मैनेजमेंट इज ऑलवेज हेल्पफुल for the betterment of organization. Management is always supportive for the profit of organization. We had already learned in my previous lecture that is the feature and characteristics of management. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, उसी को हमको समझना है और अपने माइंड में नोट करना है कि व्हाट इज द मेन मोटिव एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। आपको वही चीज समझना है। और लिसन, आपको नोट्स, आपको सारे टॉपिक को नोट्स मिल जाएंगे। यू कैन mention in comment box or you can talk to me or consult in the office. I will provide full notes of business study one by one each topic. Here I am explaining you in short form or detailed form, but whatever notes you require I will provide full notes to you all. Now listen very carefully. Here the objective of management, number 1 organizational objective, and number 2 social objective, number 3 personal objective. There are mainly 3 objectives here are mentioned in the board. Number 1 organizational objective, number 2 social objective, number 2 personal objective. ये 3 मेनली ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस स्टडी के। ये तीनों आपको समझना है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। वी कम्स टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चिल्ड्रन, व्हाई वी कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल, why we say organization, why we say organization sector? Be carefully, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन का बात आता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल का बात आता है, वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन को कहते हैं, किसी संस्था को कहते हैं, किसी बिजनेस को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अ सेटअप ऑफ वर्क डन बाय मैनेजमेंट और डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल to earn profit, that is called organization, in the form of institution, in the form of education sector, in the form of medical sector. Many organizations are running in our country and every organization is having their own objective. हर organization का अपना एक motive होता है, एक अपना एक उद्देश्य होता है, उन्हें क्या करना है। तो अगर organizational objective में आएंगे तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन, सपोज दैट ये स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन मोटिव क्या है, स्कूल का मेन मोटिव क्या, आपको एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं। पहला मोटिव है सर्वाइवल, सर्वाइवल, ये नहीं 2 साल चला स्कूल बंद हो गया, ऐसा नहीं। लॉन्ग टाइम चलना, बिजनेस क्या एक दिन के लिए करोगे, 2 दिन के लिए करोगे, नहीं ना। जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो योर बिजनेस इज सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर होल टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी आपका बिजनेस सर्वाइव होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल। जब आपका बिजनेस सर्वाइवल होगा, सर्वाइव
जो हेड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज कर रहा है, सिस्टमेटिक ऑर्डर से मैनेज करके उसको आगे बढ़ा रहा है। ये भी आपका हो गया ग्रोथ। अब आया जहां पे सर्वाइवल होगा, जहां पे ग्रोथ होगा, वहां पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? और जाहिर सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस वी टॉक अबाउट मनी ना। विदाउट मनी देयर इज नो बिजनेस, without money there is no business. Nowadays no businessmen are doing business only for sympathy and donation and satisfy the people. Nothing is there, they are only doing money for money only. हर कोई बिजनेस करता है पैसे के लिए करता है। even I am teaching you for what? I am getting money for that ना। तो ये भी एक आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। जैसे आपने एक कंपनी लगाया, आप ऑनर हो गए, या मैं कोई कंपनी लगाया, मैं ऑनर हो गया, तो मैं मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होगा हमारा बिजनेस सरवाइव हो जाए, दूसरा होगा बिजनेस का ग्रोथ होता चला जाए, तीसरा जो होगा वो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो हमारा काम करने का दिल करेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा तो हम इरिटेट होते जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के बिहाफ में होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा। अब आइए सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव सामाजिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का। पता चला हम बिजनेस कर रहे हैं और सोशल के बारे में, समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं और बिजनेस करते चले जा रहे हैं। बिजनेस कैन बी सर्वाइव इफ यू थिंक अबाउट द सोसाइटी, about the country, about the people, about the employee, then only your business can be grow day by day and it could be long lasting business. If you think, if you aim of objective, that is social objective, क्या है, सामाजिक तौर पे अगर ध्यान नहीं देंगे हम लोग तो हमारा मैनेजमेंट जो है अगर सही वर्क नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा क्या आया, सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया। जब सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पता चला हम यहाँ पे बिस्किट की फैक्ट्री लगाए और यहाँ के लोगों को क्या किए, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट मैंने सप्लाई किया और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दूसरी जगह सप्लाई कर दिया। तो यहाँ की सोसाइटी क्या करेगी, हमें डिसलाइक करने लगेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डिसलाइक करने लगेगी, हमें बिल्कुल हमारे बिजनेस को लाइक नहीं करेगी, हमारे प्रोफेशन को लाइक नहीं करेगी। ये लोग क्या करेंगे, ये हमको डिनाई कर देंगे। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव हमारे दिल और दिमाग में लेकर के चलना है कि दैट व्हाटएवर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज हियर, इट शुड बी गुड एंड बेटर क्वालिटी सो दैट द सोसाइटी ऑफ द पीपल आल्सो सेटिस्फाई एंड आल्सो हेल्प in the form of growing our business. That is the social objective of what management. Quality of product समझ में आया, मीन्स अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए जिससे आपके सोसाइटी के लोग आपकी प्रशंसा करें और आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका बिजनेस बढ़ता जाए। रीजनेबल प्राइस, बिजनेस में अगर कहीं कोई बात आती है वो प्राइस को लेकर के बात आती है, क्या रीजनेबल प्राइस। पता चला 100 रुपीज किसी प्रोडक्ट की प्राइस है और आप क्या कर रहे हैं, 150 चार्ज कर रहे हैं, तो समाज पे इसका बैड इफेक्ट आएगा, बैड इफेक्ट आएगा। तो बैड इफेक्ट आने के कारण आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ये भी माइंड में रखना है, जो भी प्राइस हो, जेन्युइन प्राइस हो, समाज को उसी प्राइस में हम अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करें। समझ में आया बेटा? चलिए थर्ड आया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब, पता चला आपने मछली शहर में एक फैक्ट्री डाली और आपने कह दिया कि हम मछली शहर के लोगों को हम यहाँ पे नौकरी नहीं देंगे। तो वहाँ की जो ऑडियंस होगी, जो पीपल होगी, जो कम्युनिटी होगी, वो आपके फैक्ट्री के खिलाफ क्या करेंगे, हमेशा निगेटिविटी को सोचेंगे, हमेशा निगेटिव फॉर्म सोचेंगे, हमेशा आपके कंपनी को हार्मफुल के बारे में सोचेंगे, हमेशा आपके कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव एक बिजनेसमैन को समाज के लिए भी लेकर के चलना है कि जो भी लोकेलिटी है वहाँ के लोगों को भी हमें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। इसे हम कहते हैं प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आया इकोनॉमिक ग्रोथ।
जब हम अपनी जेन्युइन इनकम को क्या करेंगे, पता चला हमारी इनकम 10 लाख है या हमारी इनकम 20 लाख आ रही है, 20 लाख आ रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप रख लेते हैं, समाज की सेवा नहीं करते हैं, सोसाइटी की सेवा नहीं करते हैं। जहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ पे पुअर भी रहते हैं, वहाँ पे पुअर भी रहते हैं और लो क्लास पीपल रहते हैं और मेनी पीपल्स आर देयर। तो अगर अपने प्रॉफिट ऑफ रेशियो में अगर कुछ आप उनको शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो सोसाइटी वहाँ की होगी, जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो डाउन होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, उनको भी माइंड में मेकअप करके लेकर के चलना है और उनकी भी सपोर्ट करना है। ये भी आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होती है। कैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अपने स्कूल में सोशल वर्क क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपने स्कूल में सोशल वर्क क्या है, मैंने सर ने ये रखा है कि दैट पर्सन हु इज नॉट स्टूडेंट हु इज नॉट हैविंग देयर फादर देयर फीस इज फ्री। ये सोशल वर्क है, सबके लिए फीस लिया जा रहा है लेकिन जिनके फादर ने उनके लिए फीस नहीं है, तो ये आपका सोशल वर्क हुआ। इससे क्या है, सोसाइटी में एक गुड न्यूज है, सोसाइटी में एक अच्छी क्वालिटी है, तो इस स्कूल को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ना। तो इसी तरह कोई भी बिजनेस आप करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के करेंगे कि हमें समाज को भी लेकर के चलना है। एम्प्लॉयमेंट देना होगा तो पहले लोकेलिटी को देखेंगे और अगर प्राइस देखना होगा तो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे और अच्छे प्राइस में देंगे लोगों को। तो ये भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आ गया। लास्ट आया आपके टॉपिक का पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ध्यान में देना है। पर्सनल कहेंगे सर ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुझे तो ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, सोशल समझ में आ गया, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पर्सनल जहां बात आती है वहां हर इंसान की एक पर्सनालिटी पे आती है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने किसी को एम्प्लॉय रख लिया ना, पर मैंने किसी को एम्प्लॉय रखा तो मेरे माइंड में ये मेरा उपदेश होना चाहिए कि मुझे सैलरी ऑन टाइम देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। पहला, सैलरी ऑन टाइम हमें देना चाहिए। दूसरा माइंड में क्या रखना है, गुड वर्किंग कंडीशन। जो एम्प्लॉय हमारा हो उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसका क्वालिफिकेशन अच्छा हो। तो इससे क्या होगा, पर्सनली जब आप उसको जज करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर जाएगा। तो ये भी आपका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट का। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है आपको समझ में आना चाहिए बेटा। आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, पता चला आप बैंकिंग सेक्टर में चले गए या किसी फाइनेंस सेक्टर में चले गए, किसी भी सेक्टर में, मैं भी किसी सेक्टर में जाऊंगा, तो अगर कंपनी मुझे ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगी, आपको बैंक ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा या ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, तो क्या आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। जो काम 1 ईयर में करना रहेगा वो 2 साल में करोगे, तो उसमें आपका भी लॉस होगा, कंपनी का भी लॉस होगा। तो पर्सनल क्या है, हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, हर एम्प्लॉय को सपोर्टिव भी मिलना चाहिए, जिससे आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। ये आपको समझ में आया। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर से वन सेकेंड मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, देन वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। योर टॉपिक लेक्चर नंबर इज 4 बिजनेस स्टडी, चैप्टर नेम इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। Today's topic is what is the objective, what is the motive, what is the purpose of management. So number 1, there is an organizational objective. In organizational objective, it comes survival of business, growth of business, profit of business. That should be think by the organizational people. And second, social objective. Business का social objective क्या होता है? Think, provide a better quality of product. Second, reasonable rate of price. Third, employment opportunity of locality. And economic growth of the country. These are the social objective of our business management. आपको समझ में आया। Last but not least, personal objective, providing a salary on time, providing a good working training condition, and development of the people, development of the employee. This is all about this lecture. I hope कि आपको समझ में आया होगा. We will meet you in the next lecture. Thank you. Have a good day.